Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in the last class we have seen that how we can change the background, and in this class we are going to see how we can add the solid color in the PowerPoint. PowerPoint में कैसे हम solid colors add कर सकते हैं, this we are going to see today. Okay, so let us start. Okay, so in the last class we have seen that how we can add borders to the image, format picture and all. These all things we have seen. Now, adding solid color, gradient, texture or custom image in the background. See, by inserting a solid color, gradient, texture or custom image to the background of a slide, you can create a professional looking presentation. ठीक है? So what happened? You can create a professional looking presentation. It can greatly enhance the look of your presentation. ठीक है? So what will happen if there will be a gradient or texture or custom image? So what will happen? It will by inserting a solid color, gradient, texture, custom image. So what will happen if you will do this? It will enhance the presentation of your slides and it will make your presentation look professional. Now let us see what are the steps through which you can make your presentation gradient or background styles. Let's see. First of all, you have to click on the design tab. First of all, where you have to you have to click on the design tab. Then after clicking on the design tab, next option is what you have to click on background styles. Okay, you have to click on background styles. Now after clicking on the background style, next is what? Click on the format background. You have to click on the format background. आपने कहाँ click करना है? Format background पे आपको click करना है, ठीक है? And after that, what will happen? Format background box will appear. Which box will appear? Format gradient box will appear. Now let's see what will be the next thing. So next what happen after the format gradient box will appear? Next is what? Next is what? You have to click on the radio button option of the solid color. What? You can choose your solid color from here. ठीक है? Click on the color. Click on the color button to open the color palette. Click on the color button to open the color palette. ठीक है? Select the color you want to apply as a background. Select the color you want to apply as what? As background. Now let us do it. So here I have opened my presentation and here I have already added a color. So let's see. First of all, I will click on the design tab. Okay. I have clicked on the design tab. Here I am having background. So I will choose the background and here I am having solid color. So what? I can choose any color. So suppose if I choose this orange, what will happen? Whole image will become orange. Whole slide will become orange. Okay. Now आई हैव देखो अब यहाँ पे क्या हुई, ये पूरा इमेज क्या हुआ, ऑरेंज कलर से बन गया है। और फिर से अगर हम इसका कलर चूज करें तो सपोज इंस्टेड ऑफ ऑरेंज इफ आई चूज दिस कलर पर्पल, नाउ व्हाट हैपन, इट इज नाउ पर्पल इन कलर। ठीक है, अब ये किस कलर का हो गया है, पर्पल। ये समझ में आया आपको क्या हो रहा है? इससे हमने क्या किया, हमने सॉलिड कलर फिल किया है। वी हैव फिल द सॉलिड कलर हियर। ओके,
Now after filling the solid color, next is what? After filling the color, next option is what? हमने color fill किया and अगला is what? Adding. Let us see in our PDF. Click on the close button to apply solid color on the current slide. You can also click on apply to all. हम क्या कर सकते हैं? One more option is there. We can click on apply to all. When we will click on apply to all, na buttons to the supply solid on all the all the slide. Now see. Suppose if I add few more slides, अगर मैं कुछ और slides add कर लूँ, suppose मैंने ये slide add कर ली या add slide, ठीक है? Now see. And if I want to change the color, ठीक है, तो मैं किधर जाऊंगी? I will go on the design slide. So for to change the color of the slide, I will go on the design slide. मैं design slide पे गई और design slide पे जाके मैंने क्या किया? बैकग्राउंड में जाके सॉलिड फिल पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने इन लाइम टैन मैंने रेड चूज किया। नाउ अब देखो रेड चूज करने से क्या हुआ? जब मैंने रेड चूज किया तो स्क्रीन पे ऑप्शन आया हियर सी, ठीक है, यहाँ पे ये रेड कलर हो गया एंड इधर देखो दिस सिंगल स्लाइड इज ऑफ रेड कलर, बाकी ये दो स्लाइड ये दोनों डिफरेंट कलर की हैं। नाउ टू चेंज द अपीयरेंस, अब अगर मुझे इसके अपीयरेंस को चेंज करना है सो व्हाट आई हैव टू डू? मुझे अप्लाई टू ऑल, सपोज मुझे इन स्लाइड्स पे भी रेड कलर चाहिए, सो व्हाट मैं क्या करूँगी? बैकग्राउंड में जाके अप्लाई टू ऑल कर दूंगी और वंस आई विल क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल, नाउ सी ऑल दिस 3 स्लाइड्स आर ऑफ रेड बैकग्राउंड, ठीक है, ये तीनों स्लाइड क्या हो गई हैं? रेड बैकग्राउंड की तीनों स्लाइड हो गई हैं। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? ओके नाउ ओके नाउ हमने ये चीज देख लिया। नाउ लेट अस मूव अहेड, लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? ग्रेडियंट कलर, हाउ यू कैन ऐड द ग्रेडियंट कलर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? आप ग्रेडियंट कलर कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है। Now to fill the gradient color, you have to repeat step 1, 2, 3 and then format background dialog box will appear. What will happen? Format background dialog box will appear on your screen and what you can do? You can click on the radio button option of the gradient. Gradient के radio button option में what you can do? You can use the gradient button option. Now click on the preset colors button to open gradient pattern. Next is what? You can click on the preset color option to open the gradient option, ठीक है। Now select the pattern you want to apply and choose the pattern that you want to apply to all of your slide. सारी स्लाइड पे आप जो भी पैटर्न अप्लाई करना चाहते हो वो आप वहां पे क्या करो? अप्लाई कर दो। Now click on the down arrow button of type. Click on the down arrow button of the, ठीक है।
नाउ दिस इज हाउ यू कैन ऐड द ग्रेडियंट। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। नाउ लेट अस ट्राई यूजिंग ग्रेडियंट। So I will click on background, then I will click on the solid fill colors, then okay, then I will click on more color option. So once I will click on more color option, see here I am getting a gradient sort of thing, है ना? So I can choose from here. देखो अब ये actually gradient नहीं होता है, क्योंकि मैम इज यूजिंग द ऑनलाइन मोड, तो यहाँ पे ये फॉर श्योर ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट ही है। फ्रॉम हियर आई कैन चूज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कलर की इंटेंसिटी मैं चूज कर सकती हूँ। सो इफ आई क्लिक ऑन ओके, सी व्हाट विल हैपन। ओके क्लिक करने पे ध्यान से देखो ये कैसा हो गया, ये पिंकिश हो गया है ना, ये पिंक कलर का हो गया। और ये कैसे पिंक कलर का हो गया, वो पिंक कलर जो कि एक्चुअली पावर पॉइंट में था ही नहीं, वो पिंक कलर का हो गया जो कि पावर पॉइंट में नहीं था। सो विद द हेल्प ऑफ मोर कलर ऑप्शन वी कैन क्रिएट सम ऑफ द कलर। बाय मिक्सिंग 2 और 3 कलर्स वी कैन क्रिएट आवर ओन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको पिंक कलर मिला। लेट अस ट्राई टू मेक सम अदर कलर। ठीक है, पिंक की जगह कोई और कलर इस बार ट्राई करते हैं। ओके, सो नाउ आई विल क्लिक ऑन द स्लाइड 2। Okay, and again I will go on the background color, and in that background color I will click on solid fills and then more colors. अब यहाँ पे if I choose this one and if I do it like this and I click on OK, see what will happen. ये किस कलर का होगा, ये something grayish color, और we can see ब्लैकिश ब्लू कलर का ये कुछ हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप 2 और मोर कलर को मिक्स करके एक कलर बना सकते हो। ओके, okay, now so we are done with this. Now let us see the next thing. Next is texture. ठीक है, next is what, texture. Okay, okay, so let us see how we can make our स्लाइड्स टेक्सचर्ड। ठीक है, तो देखो टेक्सचर मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे टेक्सचर मीन्स the format background box will appear and see you will get texture like this। ठीक है, सॉलिड फिल कलर कुछ इस तरह के आपके स्क्रीन पे नजर आएंगे। ठीक है, और आप इनमें से कोई एक क्या करोगे, चूज कर लोगे अपने डॉक्यूमेंट के लिए, आप इनमें से कोई एक चीज क्या करोगे, चूज कर लोगे। नाउ click on the radio button option of picture or texture fill. Click on the texture button to open the list of the texture. Select the texture you want to apply. Select the texture you want to apply। ठीक है, now next is fifth one is click on close button to apply texture fill on the current slide। ठीक है, what will happen, click on the close button to apply texture fill on the current slide। You can click on apply to all button to apply texture fill on all the side। You can click on apply to all button to apply texture fill on all the slides। सारे स्लाइड पे आप क्या करोगे, टेक्सचर फिल लगा दोगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन क्लिक ऑन, यू कैन क्रिएट द टेक्सचर फिल। नाउ अच्छा, कस्टम इमेज फिल। नाउ इफ आई वांट टू ऐड अ इमेज, ठीक है, मैं कोई इमेज अगर उसमें ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो लेट अस सी हाउ आई कैन ऐड अ इमेज इन अवर डॉक्यूमेंट। दिस वन इज इजी। तो लेट अस सी हाउ वी कैन ऐड एनी इमेज इन अवर डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट में अगर मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, तो आई एम गोइंग टू रीड द पॉइंट कस्टम इमेज फिल।
कैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड कर सकती हूँ, दे आर गोइंग टू टेल अस। नाउ टू ऐड द इमेज, the format dialog box, you have to repeat the step 1 2 3 and the format background box will appear. Click on the radio button and tick on the picture or the texture fill. ठीक है, click on the file button. अच्छा, मतलब क्या कि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो इमेज है उसको आप बैकग्राउंड इमेज की तरफ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, उसी को आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हो, तब कैसे होगा? सो व्हाट यू विल डू, click on the radio button, option of picture or texture fill, click on the file button to open insert picture dialog box, open insert picture dialog box. Okay, the insert picture dialog box will appear. What will happen? The insert picture dialog box will appear. Click on this area and locate the folder containing the file you want to use as the background image, ठीक है, and click on the file you want to use. Click on insert. जैसे देखो आप नॉर्मली पिक्चर इंसर्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, उसी तरह से आप यहाँ पे उस पिक्चर को कहाँ यूज कर सकते हो, एक बैकग्राउंड इमेज के तौर पे आप उस पिक्चर को यूज कर सकते हो, उस पिक्चर को आप बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज कर सकते हो. लेट अस ट्राई नाउ. सो आई विल क्लिक ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है. फर्स्ट आई विल क्लिक ऑन द बैकग्राउंड. देखो बैकग्राउंड पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगी व्हाट विल हैपन, हियर आई विल गेट अ ऑप्शन पिक्चर फ्रॉम फाइल. सो आई विल क्लिक ऑन पिक्चर फ्रॉम फाइल. नाउ आई हैव टू चूज फाइल. अब मैंने चूज फाइल पे क्लिक कर दिया एंड सपोज इफ आई हैव अ वन डाउनलोडेड पिक्चर, सो इफ आई विल क्लिक ऑन दैट वन. मैंने उस पर क्लिक किया और ओपन किया एंड सी देखो ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंसर्ट दिस पिक्चर, ठीक है. तो मैंने क्या किया, उसे इंसर्ट किया. तो लेट्स सी, इंसर्ट किया, क्या हुआ देखो, इस पिक्चर के बैकग्राउंड में ही ये मेरी पूरी पिक्चर आ गई. उस पिक्चर के बैकग्राउंड में मुझे मेरी पूरी पिक्चर मिल गई है ना. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज जो आपके पसंद की है उसको आप अपने MS पावर पॉइंट स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में यूज कर सकते हो. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो बैकग्राउंड इमेज आप यूज कर रहे हो वो आपके प्रेजेंटेशन से क्या होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए. वो आपके प्रेजेंटेशन से लिंक्ड होनी चाहिए, उसका वहां पे कहीं ना कहीं कुछ यूज होना चाहिए, ठीक है. एंड देन ओनली you will be able to, yeah, then only you will be able to convey your message properly, ठीक है. इतनी चीज समझ में आ गई सबको. ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. इतना तो हो गया. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पिक्चर ऐड किया. और पिक्चर हमने कैसे ऐड किया, हम गए बैकग्राउंड पे, हम गए पिक्चर फ्रॉम दिस फाइल पे, हमने पिक्चर चूज की और पिक्चर चूज करने के बाद जो भी पिक्चर चाहिए थी, सपोज ये पिक्चर चाहिए, इसको हमने ओपन करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है. तो हमने जब ये पिक्चर इंसर्ट कर दी तो क्या हुआ, अब देखो सेकंड स्लाइड पे भी सेम पिक्चर हमारी आ गई थी. ना इफ आई वांट आई कैन अप्लाई दैट टू ऑल. अगर मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ तो सी व्हाट विल हैपन, मैम ने अप्लाई टू ऑल किया और देखो ओके इस स्लाइड पे नहीं, हाँ इस स्लाइड पे भी देखो वो पिक्चर की कुछ इमेजेस इस स्लाइड पे भी आ गई. आपको अभी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो इस स्लाइड में ये जो वाटर वाला एरिया है वो वाटर वाला एरिया कुछ यहाँ पे आ गया है ना. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी पिक्चर आप, जो भी पिक्चर आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपने असाइनमेंट से रिलेटेड यूज करनी है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो.
Okay, now the next topic is that how you can change the PowerPoint view. आप PowerPoint presentation का view कैसे change करोगे? That is what? That is your next topic. That how you will change the PowerPoint presentation's view. Now to change the presentation view, let us read the point first. चलो पहले point पढ़ें और उसके बाद we will do. ठीक है? Okay now. Now, changing PowerPoint views. ठीक है? So you can use the various PowerPoint views to change how your presentation appears on screen. By default, PowerPoint displays your presentation in normal view, which displays a single slide. Microsoft PowerPoint 2010 has increased the number of presentations view available to from 3 to पहले 3 था 4 हो गया. कौन कौन से? Normal view, slide sort of view, reading and slide show view. ठीक है? Now we are having 4 views. अब हमारे पास कितने views हैं? We are having the 4 views here. Okay, so let us read about the normal view. Now, the normal view contains the 3 panes: outline, slide pane and note pane. ठीक है? तो normal view will contain the 3 panes. Normal view में what you will get? Normal view में you will get the 3 panes. सबसे important यही है that in normal view you will get 3 panes: outline, slide and note. ठीक है? So the size of these pens can be adjusted by dragging the pen border. जो pen border होता है उसको drag करके what you can do, उसको drag करके you can adjust your pen width. ठीक है? Now see normal view. See, this is the normal view. अगर मैं normal view की बात करूं तो देखो मुझे यहाँ पे साइड में क्या मिल रहा है? ये सारे पेन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे नोट भी मिल रहा है और यहाँ पे मुझे स्लाइड पेन भी मिल रहा है ना. यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वेट, नाउ सी, इधर देखो मुझे आउटलाइन व्यू भी मिल रहा है. दिस इज द आउटलाइन व्यू, दिस इज द स्लाइड व्यू एंड दिस इज व्हाट? नोट्स व्यू. ठीक है? ये कौन सा है? दिस इज नोट्स व्यू. ठीक है? नाउ ठीक है, इतनी बातें समझ में आई हैं आपको? ठीक है, करेक्ट. ओके नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. तो इसमें क्या है? दिस इज द नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू में हम क्या कर सकते हैं? अपने पेन्स की विड्थ को हम क्या कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ आफ्टर द नॉर्मल व्यू लेट अस सी व्हिच इज द नेक्स्ट व्यू. Next view is okay, they are telling us about the outline tab and slide tab. They are telling us about the each and every tab. Okay, now they are telling us outline tab के बारे में. तो now let us see how we can add the outline tab. To the default view displaying the current slide. In this view, your presentation appears as an outline mid of the titles of the main text from each slide. Click on the outline tab. Now let's click. So here we will get that option. This is what? This is editing view. This is slide sorter. This is slide show. ठीक है? तो these are the outline. ठीक है? यहाँ पे आपको क्या दिखता है? आपकी स्लाइड यहाँ पे जिस तरह की है उस तरह की स्लाइड आपको इधर दिखेगा. If I click on notes, cause I haven't written anything. Now
मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, यूजिंग द स्लाइड सॉर्टर व्यू। नाउ देखो, अगर मेरे पास ढेर सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, मेरे पास इस तरह करके ढेर सारी रेक्टेंगुलर स्लाइड्स मेरे पास ऐसे आ गई हैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू अरेंज, मतलब मैंने स्लाइड बना तो ली है, बट दे आर नॉट इन अ डेफिनिट ऑर्डर। आई वांट टू अरेंज देम, तो दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। वो मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ? दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। सॉर्टिंग, नाम से ही क्लियर हो रहा है दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉर्ट आउट, ठीक है, हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Okay, now so you can see the miniature slide of the presentation in slide sorter view. So what will happen, this make it easy to add, delete and move the move slide, and add timing and selected animation transition from for moving from one slide to another, ठीक है। तो one slide to another move करने से what will happen, it will help, ठीक है। ओके, नाउ यूजिंग द रीडिंग व्यू, ठीक है। अब अगला क्या है, पहले चलो इसको देख लेते हैं, स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू देख लेते हैं, देन वी विल ट्राई द रीडिंग व्यू, ठीक है। तो मैम इज गोइंग टू शो यू द slide sort of view. Let me change the color of any one of the slides so that I can explain you the sorting. So where design and then background and then solid fill and after click, हाँ okay got it. Now इसमें आए, इसमें भी किया design background, चलो इसमें मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ तीनों स्लाइड तीन अलग अलग तरह की हो गई हैं। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई विल हैव टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है। तो आई विल क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस इज व्हाट, slide sorter. See, I have clicked on the slide sorter view. अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने स्लाइड को अरेंज कर सकती हूँ आगे ऊपर नीचे किसी तरह से। I can arrange my slide, okay। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी स्लाइड को इधर से आई कैन अरेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे थ्री स्लाइड को अगर मुझे इधर लाना है सेकंड पोजीशन पे, तो आई कैन डू दैट। फर्स्ट को अगर मुझे थर्ड पे लाना है तो आई कैन डू दैट। सो यू कैन सी दैट व्हाट मैम इज डूइंग, मैम इज अरेंजिंग दिस स्लाइड अकॉर्डिंग टू हर विल, ठीक है। जो मेरी जिस तरह से मेरी इच्छा, उस तरह से मैं स्लाइड्स को क्या कर पा रही हूँ, अरेंज कर पा रही हूँ। ओके, सो सी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्लाइड को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्लाइड शो व्यू। सो इफ आई क्लिक ऑन, वेट अ मिनट, स्लाइड शो, सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को स्लाइड शो व्यू में व्हाट आई कैन डू, आई कैन सी माई स्लाइड। जैसे दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, देन दिस इज द सेकेंड वन and this is the end of the slide, okay। first and second, this is the first one, and यहाँ से मैं अगर अपनी स्लाइड शो स्टार्ट करूँ, so this is the first one, this is the second one and this is the last one। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, अपनी स्लाइड्स को अरेंज करती हूँ, okay। So kids, this is it for today and now ma'am will meet you in the next class, okay।